شہر نگارہ کی قابل صدرش کو افتخار شخصیت پروفیسر صابرہ حبیب۔ پروفیسر صابرہ حبیب شہر نگارہ کی ایک ایسی علمی، ادبی، تہذیبی، ثقافتی اور سماجی شخصیت ہیں جن کے حسن اخلاق، شیریں سخنی، بذلہ سنجی، انسانی ہمدردی اور سماجی خدمت کے سچے جذبے نے انہیں ہر دل عزیز اور سماج کی ایک مقبول اور باوقار شخصیت بنا دیا ہے۔ وہ نہ صرف علمی اور ادبی حلقوں میں بلکہ تہذیبی، ثقافتی اور سماجی حلقوں میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان کا حلقہ احباب وسیع اور قدردانوں میں ہر شعبہ حیات اور ہر عمر کے لوگ شامل ہیں۔ ان کے یہاں مذہب، مسلک، ذات، جنس اور عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ پروفیسر صابرہ حبیب نہ صرف خود ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہیں بلکہ وہ خواتین کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ ایک ایسے دور میں کہ جب خواتین میں اعلیٰ تعلیم کا فیصد بہت زیادہ قابل اطمینان نہیں تھا، صابرہ حبیب نے نہ صرف اپنے جذبے اور لگن سے اعلیٰ تعلیم کے مراحل طے کیے بلکہ بیرون ملک بھی جا کر تعلیم حاصل کی، نیز اپنی تعلیم کے حوالے سے ملک اور سماج کی خدمت بھی کی۔ وہ ایک ایسی استاذ بھی ہیں جنہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھا اور انہیں ترقی کرتے اور پھولتے پھلتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ شاگرد بھی اپنی استاد کو ہر میدان میں ایک مثالی خاتون کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ وہ بیک وقت ایک شاعرہ، ایک افسانہ نگار، ایک ادیب، ایک محقق، ایک مترجم اور ایک بہترین ناظم پروگرام ہیں۔ پروفیسر صابرہ حبیب کا دادی حال گورکھپور اور نانیحال شاہجہاں پور ہے۔ ان کی پیدائش دہرادون میں ہوئی لیکن دہرادون میں ان کا قیام کم عرصے ہی رہا۔ والد کے سائے سے بچپن ہی میں محروم ہو گئیں، چنانچہ ان کی پرورش مشترکہ طور پر ان کی والدہ اور نانا نے کی۔ ان کے نانیحال کا ماحول ادبی تھا۔ نانا اور ماموں دونوں کو ہی شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ نانا کو کئی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ پروفیسر صابرہ حبیب کی والدہ نے ہی قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب بھی انہیں بچپن میں ہی دی تھی۔ ان کی والدہ خود بھی ایک اچھی افسانہ نگار تھی۔ اسی ماحول کا اثر تھا کہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ انہیں بچپن ہی میں یاد ہو گیا تھا۔ صابرہ حبیب کے اندر بلا کی خود اعتمادی ان کے نانا کی مرہون منت ہے۔ نانا وسعت ذہنی کے مالک تھے اور لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کی حمایت کرنے والوں میں تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب لڑکیوں، خاص طور سے مسلم لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت اور روشن خیالی کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اسی ذہنیت کی وجہ سے صابرہ حبیب اور ان کے گھر والوں کو بعض رشتہ داروں اور محلے والوں کے طعنے بھی سننے کو ملتے تھے۔ صابرہ حبیب کی ابتدائی تعلیم رسم و روایت کے مطابق گھر ہی سے شروع ہوئی، پھر عمر بڑھا کر چھٹے درجے میں داخل کروا دیا گیا۔ شاہجہاں پور میں ہی گاندھی فیض عام کالج سے BA اور انگریزی ادب میں MA لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا۔ MA کی تعلیم کے دوران ہی روسی ادب کے ترجمے کا مطالعہ کیا تو روسی ادب سے دلچسپی بڑھتی گئی اور یہ خیال پختہ ہو گیا کہ اس ادب کو براہ راست روسی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے، چنانچہ روسی زبان بھی سیکھنا شروع کر دی۔ دوران تعلیم ہی انہیں سوویت یونین کی آل انڈیا اسکالرشپ حاصل ہوئی اور اس طرح انہیں اتر پردیش کی پہلی ایسی لڑکی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا جسے یہ اسکالرشپ حاصل ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ماسکو چلی گئیں۔ کم عمری میں ملک غیر میں تعلیم حاصل کرنا اس وقت آسان نہیں تھا، لیکن ان کی والدہ نے لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ روس میں صابرہ حبیب نے 7 سال گزارے۔ ان کے اندر اردو شعر و ادب کے ذوق کو جن اساتذہ نے پروان چڑھایا ان میں وہ آج بھی محترمہ زبیدہ خاتون، مسعود عالم اور ڈاکٹر شجاعت علی سندیلوی کو یاد کرتی ہیں۔ صابرہ حبیب نے روسی فوک کہانیوں اور روسی نظموں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے جس کی اہل علم و نظر نے بہت قدر افزائی کی۔ MA کے دوران ہی کرامت حسین مسلم گرلز کالج میں انگریزی کے استاد کی حیثیت سے ان کی تقرری ہو گئی تھی۔ ماسکو سے واپسی کے بعد انہیں حیدرآباد اور دہلی جیسے کئی شہروں سے ملازمت کے آفر ملے، لیکن انہوں نے لکھنؤ میں ہی رہنے کو فوقیت دی۔ اپنی مادر علمی لکھنؤ یونیورسٹی میں ہی وہ روسی زبان کی لیکچرر ہو گئیں اور لکھنؤ ہی کی ہو کر رہ گئیں۔ اس دوران انہوں نے نائجیریا میں بھی وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے 1 برس گزارا۔ پروفیسر صابرہ حبیب کے اعزاز میں روزنامہ اودھ نامہ اور اردو رائٹرز فورم کے زیر اہتمام ایک محتم بشان پروگرام کا انعقاد جے شنکر پرساد ہال قیصر باغ میں 13 اکتوبر 2014 میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں شہر نگارہ میں سرگرم مختلف شعبہ حیات کی ممتاز شخصیات نے شرکت کی تھی۔ پروفیسر شاعر دولوی نے پروفیسر صابرہ حبیب کی شخصیت کو ہمہ جہت شخصیت سے تعبیر کرتے ہوئے انہیں خواتین کے لیے ایک مثالی اور آئیڈیل شخصیت قرار دیا تھا۔ ہندوستان ٹائمز کی ریزیڈنٹ ایڈیٹر سنیتا ایرن نے پروفیسر صابرہ حبیب اور ان کی تعلیم و ترقی کے حوالے سے یہ پیغام دیا تھا کہ مسلم سماج میں حجاب یا ہمارے ہاں کا پردہ کسی بھی میدان میں کسی عورت کی ترقی کے راستوں میں حائل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر صابرہ حبیب جیسی شخصیات اس کی زندہ اور روشن مثال ہے۔
प्रोग्राम के कन्वीनर सैयद वकार रिजवी ने जुमला मेहमानों और शुरका का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि प्रोफेसर साबरा हबीब हमारे शहर की ऐसी शख्सियत का नाम है जो बैक वक्त तालीमी, समाजी और सियासी शोबों में अपनी खिदमात के हवाले से एक मुनफरिद और मुमताज मकाम रखती हैं। उन्होंने कहा कि इस शहर को बहुत पहले प्रोफेसर साबरा हबीब की खिदमात का एतराफ़ करना चाहिए था। इस मौके पर प्रोफेसर साबरा हबीब को उनकी गरा कदर खिदमात के एतराफ़ में वक़ार अवार्ड भी पेश किया गया था। जलसे में डॉक्टर सबीहा अनवर, नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला, शरद प्रधान, डॉक्टर परवीन शुजात, प्रदीप कपूर, मनीष शुक्ला, रवि सुनील कुमार चतुर्वेदी और डॉक्टर मंजू आनंद ने भी अपने ख्यालात और तअस्सुरात पेश किए थे। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर साबरा हबीब ने अपने तअस्सुरात का इजहार करते हुए अपनी ज़ात के पर्दों में झांकते हुए अपनी जिंदगी के नशेब फराज को सांप और सीढ़ी के खेल से ताबीर किया था। साबिक कारगुजार वज़ीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिज़वी ने प्रोफेसर साबरा हबीब की शख्सियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि जब हिंद रूस ताल्लुकात बेहतर थे उस वक्त उत्तर प्रदेश में जब वहां से कोई वफ्द आता था तो वज़ीर आला ख्वाह कोई भी रहा हो, साबरा हबीब की रूसी, अंग्रेजी और उर्दू हिंदी ज़बान और कल्चर पर मजबूत गिरफ्त होने की वजह से उन्हें ही अपना तर्जुमान बनाता। डॉक्टर अम्मार रिज़वी ने मजीद कहा कि प्रोफेसर साबरा हबीब की जिंदगी मुकम्मल तौर पर कशमकश और जहद मुसलसल से ताबीर है। आज वो जिस मकाम पर हैं बिलाशुबहा ये उनकी मेहनत, जज्बा, लगन और खुलूस का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जब तक सोवियत यूनियन था तब तक तरक्की पजीर ममालिक की भी अपनी एक आवाज हुआ करती थी, लेकिन सोवियत यूनियन के जवाल के बाद हालात बदल गए। प्रोफेसर साबरा हबीब ने एक सियासी तर्जुमान की हैसियत से भी हिंदुस्तान की खिदमत की है। डॉक्टर अम्मार रिज़वी ने प्रोफेसर साबरा हबीब के एजाज में होने वाले प्रोग्राम में ये मुतालबा भी किया था कि प्रोफेसर साबरा हबीब की समाजी, मुल्की और इल्मी और अदबी खिदमात को देखते हुए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। उनके इस मुतालिबे को एक करारदाद की शक्ल में इत्तिफाक राय से मंजूर भी कर लिया गया था। मारूफ अफसाना निगार डॉक्टर सबीहा अनवर अपने ज़माने तालिब इल्मी को याद करते हुए कहती हैं कि जब वो करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में तालिबा थी और साबरा हबीब एक उस्ताद की हैसियत से कॉलेज में थी, उन्होंने कहा कि साबरा साहिबा बहुत जल्द जादुई शख्सियत की बिना पर हर दिल अजीज हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी हर दिल अजीजी देखी है, उनकी मकबूलियत देखी है, उनकी शख्सियत दिलों में जागुजी है। वो एक अच्छी उस्ताद रही हैं, अच्छी माँ की अच्छी बेटी रही हैं, जिनकी दुआओं से वो आज लायक इफ्तिखार मकाम पर फायज हैं। आज मुल्क जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है उनमें सबसे ज्यादा परेशान गरीब तबका है जिसका पुरसान हाल कोई नहीं है। सरकारी बयानात जमीनी सतह पर नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में फारिगुल बाल तबके की जिम्मेदारी है कि वो खुद आगे आए और मुस्तहिकीन तक पहुंचकर उनकी इमदाद करे। प्रोफेसर साबरा हबीब खामोशी से अपनी यह अहम समाजी जिम्मेदारी भी बहुस्न खूबी निभाती चली आ रही हैं। उन्होंने खुद को लॉकडाउन का पाबंद रखते हुए भी बिला तफरीक अपने आस पास के मुस्तहिकीन तक पहुंचने की कोशिश की है और हत्तल इम्कान इमदाद का फरीजा अंजाम दिया है, खा वो नकदी की सूरत में हो या अशिया की सूरत में। यकीनन ये जज्बा लायक तहसीन है और दूसरों के लिए काबिल तकलीद भी है। अहले नजर से पोशीदा नहीं है कि इन मुश्किल हालात में इंसान ही नहीं बल्कि सड़कों पर फिरने वाले बेजबान भी भुखमरी का शिकार होने लगे। उनका पुरसान हाल कोई नहीं है, उनकी हालत भी काबिल रहम है। वो भी खुदा के मखलूक है, वो भी हमारी हमदर्दी और तवज्जो के मुस्तहक है। बकौल शायर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। प्रोफेसर साबरा हबीब इस हवाले से भी काबिल तारीफ व तकलीद और लायक सब मुबारकबाद व तहसीन है कि उनका यह हमदर्दी का जज्बा फकत इंसानों तक महदूद नहीं है बल्कि उनके अंदर यह जज्बा जानवरों के लिए भी वैसा ही पाया जाता है। उनके महल्ले में आवारा घूमने वाले कुत्ते और दूसरे बेजुबान जानवर भी उनके लिए अपनी आंखों में जज्बे ममनूनियत रखते हैं, क्योंकि वो इंसानों के साथ साथ अपने महल्ले में घूमने वाले जानवरों का भी वैसा ही ख्याल रखती हैं। सलाम है इस जज्बे को, वो एक ऐसी खातून है मैदान अमल में जिनका किरदार एक मिसाली किरदार रखता है। मारूफ अंग्रेजी सहाफी और सोशल एक्टिविस्ट कुलसूम तलहा कहती हैं कि साबरा आपा को कौन नहीं जानता, मैं भी उन्हें बरसों से जानती हूँ। एक बहुत अच्छी टीचर, बहुत अच्छी नाज़िमे प्रोग्राम और एक बहुत अच्छी इंसान। मगर और अच्छी तरह से मैंने उन्हें तब जाना जब वो मेरे किश्वरी कनेक्ट के ज़ेरे एहतमाम होने वाले तलफ़्फ़ुज़ और हम प्रोग्राम का हिस्सा बनी। जिस प्यार से, जिस अकीदत से और जिस जज्बे से उन्होंने इस मुहिम को हमारे साथ सर अंजाम दिया, उसके लिए हम सब उनके हमेशा ममनून रहेंगे। कुलसूम तलहा ने कहा कि साबरा आपा
औरत जो काम अपने हाथ में लेती हैं उसे पूरी लगन से, जज्बे की सदाकत से और बहुत मेहनत से अंजाम देती हैं। सबसे बड़ी खूबी ये कि वो हमेशा कुछ न कुछ सीखती हैं। उनकी लगन और उनके जज्बे को देखकर कहना पड़ता है कि एक प्रोफेसर को ऐसा ही होना चाहिए। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और सीखने को मिलता रहेगा। हम उनकी सेहत, सलामती और उम्र में बरकत की दुआ करते हैं। मशहूर गुलकारा मालविका हरिओम कहती हैं कि प्रोफेसर साबरा हबीब एक बहुत प्यारी शख्सियत का नाम है। उनको मैं ही नहीं, सारा लखनऊ जानता है। लखनऊ उनसे है या वो लखनऊ से है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लखनऊ ने भी उन्हें उतना ही अपना समझा और उतना ही प्यार दिया है जितना उन्होंने इस लखनऊ को दिया है। एक बहुत ही जिंदा दिल और बहुत पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी से बहैसियत प्रोफेसर सुबुकदोश हुई। उन्हें लातादाद अवार्ड और एजाजात से नवाजा गया है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनका जाहिर और बातिन एक है। मैंने उनको सदा दूसरों के लिए मुतफक्किर पाया। उनकी एक गैर सरकारी तंजीम भी है, उसमें काम करने वाली खवातीन के लिए वो कोरोना काल में परेशान दिखी। वो खुद उनके घर जाती और उनकी परेशानियों को किसी हद तक कम करने की कोशिश करती। वो असली सोशल वर्कर हैं और बहुत साहसी यानी हौसलामंद और जुर्रतमंद और बेहद नफीस खातून हैं। मुझे फख्र है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। मुमताज पीजी कॉलेज में उर्दू के उस्ताद डॉक्टर परवीन शुजात गालिब के एक मिसरे से अपनी गुफ्तगू का आगाज करती हैं कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा का जिक्र है तो समझ में नहीं आ रहा कि किस नाम से उन्हें याद करूं, उस्ताद कहूं, बाजी कहूं या एक बहुत अच्छी दोस्त कहूं। बकौल शायर, तेरे ख्याल को पैकर में ढालना था मगर, तेरे ख्याल को पैकर में ढालना था मगर, न जाने कितनी मिसालों में खो गया हूं मैं। प्रोफेसर साबरा हबीब लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरी उस्ताद भी रही, मेरे बेटे के भी उस्ताद हैं। हम दोनों ने उनसे रूसी जबान सीखी है। इसके अलावा वो खुद मेरे वालिद डॉक्टर शुजात अली संदेलवी की शागिर्दा हैं। इस हवाले से वो मेरी बहन भी हैं, एक बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, मेरी रहनुमाई भी करती हैं। मैं अपनी सारी उलझनें और परेशानियों को उनसे शेयर करती हूँ। वो उन्हें दूर करने की मुखलिसाना कोशिश भी करती हैं। वो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और रूसी जबानों पर यकसा कुदरत रखती हैं। इसके अलावा एक शायरा हैं, अच्छी अफसाना निगार हैं और एक बहुत अच्छी निजामत करने वाली नाजिमा भी। लेकिन इन तमाम खूबियों से परे उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो एक बहुत मासूम और मोहब्बत करने वाला दिल भी रखती हैं। किसी को भी परेशानी में देखती हैं तो एकदम से तड़प उठती हैं और एक तरह की बेचैनी में मुब्तला हो जाती हैं कि किस तरह से वो उसकी परेशानी को दूर करें, कैसे उसकी मदद करें। ये जज्बा सिर्फ उनका इंसानों तक ही महदूद नहीं है बल्कि बेजबान चरिंद परिंद के लिए भी उनके दिल में हमदर्दी का यही जज्बा है। इसी खिदमत खल्क के जज्बे के तहत उन्होंने एक NGO भी बना रखी है जिसमें वो गरीब बेसहारा लड़कियों और औरतों को हिंदी इंग्लिश पढ़ना भी सिखाती हैं और उनके लिए दस्तकारी सीखने का भी इंतजाम कर रखा है ताकि वो खवातीन खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए किसी का दस्ते निगर न होना पड़े। प्रोफेसर साबरा हबीब की किन किन खूबियों का जिक्र करूं और किन किन सिफात को याद करूं, तंगी वक्त दामनगीर है। इसलिए मैं इन 4 मिसरों में उन्हें अपना खराज तहसीन पेश करती हूँ। शेरों के फूल तुम पे चढ़ाना फजूल है, शेरों के फूल तुम पे चढ़ाना फजूल है, एक दास्तान तूल सुनाना फजूल है, क्या कुछ किया है तुमने बताना फजूल है, खुर्शीद को चिराग दिखाना फजूल है। प्रोफेसर साबरा हबीब के एक और शागिर्द सहाफी प्रदीप कपूर प्रोफेसर साबरा हबीब के बारे में कहते हैं कि मैं जिस जमाने में उनके क्लास में था उस जमाने में देश के जाने माने हॉकी खिलाड़ी नवीन खन्ना भी उनके क्लास में थे। एक और नाम याद आ रहा है कि सुरेंद्रनाथ अवस्थी का, जिन्हें पुत्तू अवस्थी कहते हैं। वो MLC बने, बाद में MLA भी हुए, वो भी मेरे साथ थे। हम सब लोग एक साथ प्रोफेसर साबरा हबीब से रूसी भाषा का ज्ञान हासिल करते थे। इसके अलावा उनसे हमारे फैमिली रिलेशन भी रहे हैं। एक जमाने में मेरे वालिद बिशन कपूर, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रमेश सिन्हा, श्री कैलाश खन्ना, ये तमाम सब लोग इंडो सोवियत कल्चर सोसाइटी में सरगर्म थे। उस दौरान जो भी रूसी डेलीगेशन आते और उनके जो प्रोग्राम होते उनकी निजामत डॉक्टर साबरा हबीब ही करती थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लखनऊ के लोगों ने अगर रूसियों को जाना तो डॉक्टर साबरा हबीब के तवस्सुस से ही जाना, क्योंकि जो भी तकरीर वो लोग करते थे उनको ट्रांसलेट कर उर्दू हिंदी में डॉक्टर साबरा हबीब ही पेश करती थी। इसके अलावा लखनऊ शहर में होने वाले अक्सर अदबी और सकाफती प्रोग्रामों की निजामत डॉक्टर साबरा हबीब करती रही हैं और आज भी कर रही हैं।
प्रोफेसर साबरा हबीब की एक स्टूडेंट रश्मि श्रीवास्तव अपनी उस्ताद के बारे में कहती है कि डॉक्टर साबरा हबीब सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो सिर्फ मेरी गुरु नहीं है बल्कि मेरी सरपरस्त, मेरी रहनुमा, मेरे हर अच्छे बुरे में मेरे साथ खड़ी रहने वाली एक नेकदिल इंसान है। वो ऐसी हस्ती है जिन्होंने कभी अपनी इल्मियत का रौब नहीं जताया। वो पानी की तरह सरल और शफाफ हैं। उनके साथ बैठना ऐसा ही है जैसे तेज धूप में चलते चलते कोई घने पेड़ का साया मिल जाए। उनके बारे में चंद लफ्जों में कुछ कहना, 2-4 मिनट में कुछ बोलना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है कि जब मैं इंटर की तालिबा थी उस वक्त एक मैगजीन में उनकी तस्वीर छपी थी। उनको पुष्किन अवार्ड मिला था जो रूसी भाषा का सबसे बड़ा अवार्ड है। मैं उसे देखकर बहुत मुतासिर हुई। जब ये देखा कि वो लखनऊ में ही है तो और ज्यादा खुशी हुई। हम कुछ दोस्तों के साथ उनके घर पहुंच गए। उन्होंने पहली ही मुलाकात में हमें बहुत मुतासिर किया। जब मेरा एडमिशन LU में हुआ तो मैं उनकी बाकायदा स्टूडेंट हो गई। उन्होंने जो कुछ पढ़ाया वो सब मुझे आज भी एक एक शब्द याद है। हम लोगों ने रूसी भाषा का एक एसोसिएशन बना रखा है जिसमें बहुत से पुराने स्टूडेंट आज भी शामिल हैं और इस हवाले से हम सब मैम से जुड़े हुए हैं। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ की तफसीर साबरा, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ की तफसीर साबरा, एक दिल नवाज ख्वाब की ताबीर साबरा, नक्शे कदम से अपने जलाती गई चराग, नक्शे कदम से अपने जलाती गई चराग, हर शाम के सवेरे की तनवीर साबरा। बिलाशुबहा प्रोफेसर साबरा हबीब जैसी हमजहत और मिसाली शख्सियत मुल्क और कौम के लिए काबिल इफ्तिखार है। उन्होंने मुताद्दिद मौजू पर तकरीबन 10 किताबें तसनीफ की। सरकारी और गैर सरकारी सतह पर रूसी से अंग्रेजी और उर्दू में तर्जुमे का काम भी अंजाम दिया। इसके अलावा कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के जरायद और रसाइल में मज़ामीन भी शाये होते रहे हैं। उन्हें मुताद्दिद सरकारी और गैर सरकारी इदारों और तंजीमों की तरफ से एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। अवधनामा प्रोफेसर साबरा हबीब जैसी मिसाली और आइडियल शख्सियत की इल्मी, अदबी, तहजीबी और समाजी खिदमात का एतराफ़ करता है और उन्हें उनकी हुसूलियाबियों के लिए मुबारकबाद देते हुए उनकी सेहत और आफियत और सलामती के लिए नेक तमन्नाएं पेश करता है।